Once again, a very good afternoon, all of you. This is your course instructor, Khushwant Patnani. Let us start off with the session with a short deep breathing and prayer session. Request you all to close your eyes and one by one, breathe deep, count one. Breathe in and breathe out. Count two. Breathe in once again. And breathe out. Count three. Breathe in once more. And breathe out. Let us pray. मैं कहता जाऊंगा, आप लोग मेरे पीछे अपने अपने घरों पर दोहराइए. Because prayer is magic. Prayer is something which can turn your life upside down. It can bring miracles to your life which you have never imagined. Collective prayers are even more powerful. So let us pray. Let us thank God for whatever we have and whatever we are going to have. Whatever we had. Let us thank. With a broad smile on your face, let us thank the God. Dear God, we are your children. We thank you for your grace and mercy. हे ईश्वर, आपकी दया, कृपा और दुआ का शुक्रिया. Dear God, I thank you for this life and all the gifts of life. Thank you for the motivation, love, respect, support from my family, friends, colleagues, and all my mentors. Thank you for such good health, wealth, and wisdom. Thank you for all the basic necessities of life. Dear God, all my dreams have been put by you in my heart. Dear God, I thank you for all these dreams. I thank you that now, in this moment, I am, I have become, and I have cleared JEE Advanced 2022. Dear God, I thank you that I have cleared NEET 2022 in flying colors. Thank you that I have got admission into the college of my dreams. And this is working wonders for everybody in the world. I repeat, my admission into the best IIT, into the best aims of the country is working wonders for everyone. Thank you in advance. Thank you. Thank you. Now, slowly and steadily, with gratitude in your heart, peace in your mind, and smile on your face, you may open your eyes. Very slowly and steadily. All right, class, let's begin. So let us take one of you, Ayush.
So Ayush, for everyone, let us do a quick revision of what we had read in the last class. So tell us the chapter name that we are doing and what did we cover in the last class. Yes, Ayush, आप अपने notes का help ले लो, है ना? Notes की help ले लो if you wish. Yes, Ayush, start. Yes. तो कल हम लोग पढ़े थे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, Mm-hmm. जिसमें अपन सबसे पहला टॉपिक पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर्स। Mm-hmm. उसके बाद अपन पढ़े थे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें से अपन 5 रूल्स पढ़ चुके थे। ठीक है। पहला और रूल था कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। mm-hmm. दूसरा रूल था कि कोई भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो अपन उसको भी सिग्निफिकेंट नंबर मानते हैं। बिल्कुल। तीसरा रूल था कि अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं रहता है तो जो फाइनल जीरोस होते हैं उनको अपन सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। राइट। चौथा रूल था कि सिग्निफिकेंट फिगर मतलब अगर डेसिमल पॉइंट होता है तो जो फाइनल जीरोस होते हैं डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के राइट में उनको भी अपन सिग्निफिकेंट मानते हैं। पांचवा रूल था कि अगर कोई भी नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ चालू होता है तो जो जीरोस होते हैं उसके जस्ट आफ्टर जो जीरोस आते हैं उसको अपन सिग्निफिकेंट नहीं मानते। ठीक है। Anyone who would फिर like अपन to add? हाँ, बहुत बढ़िया आयुष, ग्रेट। हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो? हाँ फिर अपन पढ़े थे रूल्स रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। राइट। राउंडिंग ऑफ भी समझा था हमने, राइट, कि राउंड ऑफ कैसे इस करते हैं। करेक्ट। राउंडिंग ऑफ में अपन 3 केस पढ़े थे। राइट। अगर आखिरी वाला जो डिजिट है या कोई जिसको भी अपन राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो 5 से बड़ा होता है तो अपन एक ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, और अगर वो 5 से छोटा होता है तो अपन कुछ नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते हैं उसको। फिर अगर वो ऑड होता है आखिरी नंबर, मतलब आखिरी जो सेकंड लास्ट नंबर अगर वो ऑड होता है हम्म। तो अपन अगर 5 होता है तो उसको एक डिजिट से बढ़ा देते हैं, और अगर इवन होता है तो अपन वैसे ही छोड़ देते हैं। हम्म। और फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस है, इसको भी और समझाना है सर। बोलो बोलो। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अपन पढ़े थे कि अपन उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर को कंसिडर करते हैं और So we'll begin once again. Yes. Yes, आयुष, आपने जो लास्ट पॉइंट आप कह रहे थे, राइट, वहां से रिपीट करो, जहां पे आपने आपने पहले 2 पॉइंट बता दिए थे, एक पॉइंट दोबारा से रिपीट करो। यस आयुष। So class, if my voice is audible to everyone, just raise your hands, everyone. If my voice is audible to everyone, please raise your hand. Yeah. Okay. All right. All right. 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 So just a minute. I'll unmute you, Ayush. हाँ, राइट बच्चा, एक बार जो आपने आखिरी वाला पॉइंट बोला था उसको रिपीट करो। ये प्लस माइनस वाला सर। प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के लिए क्या करते हैं? यस आयुष। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले में अपन लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले नंबर को कंसिडर करते हैं और प्रोडक्ट या डिविडेंड कोशेंट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। प्लस और माइनस वाले में जिसमें डेसिमल पॉइंट सबसे कम रहते हैं उसको अपन कंसिडर करते हैं, और सम या डिफरेंस में उतने ही डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स के बाद डिजिट्स आते हैं। मतलब हम बेसिकली जब भी कभी दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं
तब जो हमारे पास रिजल्ट आया है ना, जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में हम जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अलाउ करते हैं, राइट, एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट क्लास, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, राइट। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया जब हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था, तब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के केसेस में हमने देखा था कि नंबर ऑफ जो डेसिमल प्लेसेस हैं दे आर सेम एज द इनिशियल नंबर्स, यानी कि लीस्ट ऑफ द इनिशियल नंबर्स। जैसे अगर आपने 2.0 लेट्स से, हमने देखा था रूल क्या था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, वो ये था कि अगर आपने ऐड किया है सपोज 2.0 प्लस 3.01 है ना, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5.01। तो यहां पर देखोगे आप डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं, यहां देखोगे डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं। खासकर जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तब आप लीस्ट डेसिमल प्लेस यहां पर मेंटेन करते हो। क्या मेंटेन करते हो, लीस्ट डेसिमल प्लेस इन द आंसर, राइट। तो देखो यहां पर यू हैव 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर यू हैव 2 डेसिमल प्लेस, इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, 1 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब आंसर में जो भी आया उसमें कितनी डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस। तो अब आपको राउंड ऑफ का रूल लगाना है और इसको राउंड ऑफ करना है। तो इन ऑर्डर टू राउंड इट ऑफ, दिस इज 0 इज एट द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, 1 इज एट द सेकंड डेसिमल प्लेस। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 सेकंड डेसिमल प्लेस पे तो इसको हटाएंगे, लेकिन हटाते वक्त रूल याद रखेंगे, नंबर इज लेस देन 5। तो लेस देन 5 है, तो इसीलिए या इस 0 में कोई चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 5.0। अब देखो इसमें डेसिमल प्लेस कितनी हो गई, 1, और इन दोनों में से लीस्ट कौन सी थी डेसिमल प्लेस, 1, इसीलिए दिस इज द आंसर, राइट। हमें ये चीज समझनी है। एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट। तो हमारे पास एक ये फंडा आया, फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब भी कभी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, राइट, लेट्स से 2.1 एंड 0.21 है ना। सो अब ऐसे केस में हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, ऐसे केस में रादर देन कंसिडरिंग, ऐसे केस में रादर देन कंसिडरिंग डेसिमल प्लेसेस हम कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो अब जैसे आपके पास है 2.1, राइट, इनटू, मैंने जो लिखा है ध्यान देखो, सभी लोग लिखो अपने पास 2.1 इंटू 0.21 इंटू 0.21, तो वी हैव द आंसर एज 0.21 का स्क्वायर होता है 441, राइट। सो दिस शुड बी 0.441। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनो हर जगह, राइट। सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनो कितने हैं, अगेन 2, राइट। इसका मतलब कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ऑफ कोर्स 2, राइट, होने 2 ही चाहिए, लेकिन है कितने, दीज आर रिक्वायर्ड, राइट, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं राइट नाउ, 3, राइट, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, राइट। सो इसीलिए अभी प्रेजेंट 3 है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएं। तो हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं 1 को। तो अब देखो जब 1 को हटा रहे हैं तो 1 कैसा है, अगेन लेस देन 5, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0.44। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2, राइट। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में कई जगह एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं रहता है, बट देन दिस इज वन ऑफ द रूल्स, राइट। एक और रूल लिखो जो आपने लिख लिए हैं, उसके अलावा एक और रूल लिखो। नेक्स्ट रूल इज दैट ट्रेलिंग जीरोस, trailing zeros before decimal point, right, and after a non-zero number or a non-zero digit are significant, are significant. So I think आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिया था, राइट, लेट अस टेक दोज आंसर्स। सो इसको वेरीफाई करेंगे सब लोग। आई जस्ट सी आप लोगों के लिए जो हमने होमवर्क लिया था, दैट वाज, सो
सो आई थिंक ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे, रिकॉल करो, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए था that when you have a number, let's say 700.007 है ना, तो अब हमने क्या कहा है, all the zeros between two non-zero digits should be significant and all the non-zero numbers are already significant। देखो इनको ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं, मतलब कोई एक डिजिट के बाद आने वाले जीरोस को ट्रेलिंग जीरोस कहा जाता है। ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मतलब जो फॉलो कर रहे हो, राइट। सो ट्रेलिंग जीरोस, these trailing zeros are also significant। और डेसिमल पॉइंट के बाद के जो जीरोस होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, वो हम जानते हैं, राइट। नॉन जीरो भी सिग्निफिकेंट। तो देखो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 6, है ना। और देखते हैं, फिर हमारे पास अगला था 7.007, राइट। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज and here also we have 4 significant figures। Let us take next one। You had this question by Kushal that sir 70.00 को आप क्या कहोगे। तो अब मैंने याद है आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था that whenever you go to petrol pumps for getting your vehicles or getting petrol in your vehicles, when that person fills the petrol into your uh, tank of the vehicle, just have a look on the machine. It generally reads, when you talk about money, right, rupees, 58.00, sometimes like this, and the other times it might read as 100.00। जब आपने सपोज 100 रुपए का पेट्रोल भराया, राइट, सो यू माइट हैव दिस रीडिंग। इस रीडिंग का क्या मतलब है, इस रीडिंग का मतलब है प्रिसाइसली 100 रुपए ही लगा, 100 रुपए और 0 पैसे, राइट। इसको मैं क्या कह सकता हूं, 100 रुपए और 0 पैसे। सो ऐसे केस में जितने भी ट्रेलिंग जीरोस हैं, जितने भी ट्रेलिंग जीरोस हैं वो भी कैसे हो जाएंगे। ये एग्जांपल देने का रीजन ही ये था कि ये वाले जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो तो हैं ही सिग्निफिकेंट, मुझे पता है। ऑफ कोर्स जो भी पॉइंट डेसिमल के बाद राइट में आ रहा है वो कैसा है, सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मैंने 1.00 लिखा है तो इसमें ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, राइट, बिकॉज दे आर टू द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस। 1 भी सिग्निफिकेंट है तो यहाँ पे 3। लेकिन अगर मैंने 100.00 लिखा तो 1 भी सिग्निफिकेंट, ये ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट और ये आखिरी वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे, राइट। तो हमारे पास इस वजह से 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए इस फिगर में। इसमें कितने हो जाएंगे उसी तरह से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये लिख लो सब लोग अपने पास, राइट दिस डाउन। और let us take one more example। I think this question was asked by one more of your colleagues। Suppose अगर मेरे पास ऐसा नंबर है 0.00090, तो इसमें भी देखो हमने जो रूल पढ़ा है, क्या, अगर नंबर जीरो से शुरू होता है, अगर नंबर जीरो से शुरू होता है तो ऐसे केस में हम उन्हीं नंबर्स को सिग्निफिकेंट मानते हैं जो एंड में आ रहे हैं या एक्सक्लूडिंग जीरो। अब एक बार ट्राई करके देखो ये वाला सवाल, ये क्योंकि मैंने आपको दिया नहीं था, सो अब ट्राई करो। यू हैव 1 मिनट, जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो। आपको बताना है इस ऑप्शन नंबर 4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ध्यान से, हड़बड़ी मत करना, सिर्फ जवाब देने की जल्दी नहीं करना है, सही जवाब भी देना है, राइट। यस यस क्लास, गेट गोइंग। जैसे ही हो जाए हैंड रेज करो, आई एम वेटिंग बच्चा लोग। यस याद करो, हमने कहा था अगर जीरो से शुरू होता है कोई नंबर, है ना, कोई जीरो से शुरू होता है तो ये वाले कैसे हो जाते हैं, ये वाले सबके सब कैसे हो जाते हैं जीरोस, नॉन सिग्निफिकेंट। कैसे हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट, या इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। जो सिग्निफिकेंट है वो कौन से होते हैं, 9 एंड ट्रेलिंग जीरोस। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2। कितने हो गए बच्चा लोग, 2। ठीक है, लिख लो अपने पास। अकॉर्डिंग टू द रूल significant figures are 2। लिख लो।
ओके अब हम लोग एक एक करके आप लोगों के सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं बिफोर वी प्रैक्टिस, राइट? सो क्लास, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, थैंक यू. नाउ you can bring your hands down, thank you. Now let us take one by one queries and solve them, right? ठीक है. So we'll have solution to queries, okay? All right. ठीक है. Now एक एक करके हैंड रेज करेंगे सब लोग जिन जिन को डाउट्स हैं, so that you can we can work on them and clear them out. ठीक है बच्चा लोग, हैंड रेज करो in case you want to ask anything, कोई डाउट हो, कुछ रह गया हो, something you want to ask, है ना? You can raise your hands. Yes बच्चा लोग, और एक एक करके हम लोग वो सारी queries लेते जाएंगे. Yes, let us start from, okay, we have one student, Chaitanya. माहिविश, आपने भी लास्ट क्लास में हैंड रेज किया था, आई रिमेम्बर. राहुल, कार्तिकेय, कोई भी डाउट हो, एनीवन, तेजस, कुशल, है ना? Anyone, just raise your hand. Viraj, everyone in the class. Ayush, Kartikeya, Chaitanya, Amish, Ayush, Disha, right? Everyone, raise your hand in case you have anything to ask. इस चैप्टर में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है या आप पूछना चाहते हो तो हैंड रेज करो, राइट? जो पार्ट आपका रह गया है, सपोज इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग, तो उसके लिए आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द लिंक्स टुडे. उसको आप पहले देखना, राइट? और फिर पूछ लेना इन केस समथिंग इज लेफ्ट आउट, राइट? राइट, if there is something which is left out, वो आप मुझसे कब पूछ सकते हैं? जब एक बार आप वो वीडियोस देख लें. सो विल टेक वन बाय वन. ओके, हाँ चैतन्य बच्चा बोलो. एक मिनट बच्चा, हाँ एक बार दोबारा से अपना डाउट्स रिपीट करो. आपको कौन सा रूल समझना है? फर्स्ट रूल, राइट? यस सर, बाकी दो रूल समझ में आ गए, जैसे कि सेकंड रूल में यस सर, जोर से पढ़ो. फर्स्ट रूल पढ़ो. यस सर, all non-zeros are significant figures. For example, 23.73 contains 4. लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि all non-zeros are significant करके, लेकिन जैसे कि अगर 0 के बाद अगर 7 आ गया तो 0 भी significant नहीं होगा ना. इसमें तो all non-zeros लिखा है, 0 भी तो. सुनो 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 चैतन्य, ध्यान से सुनो. यहाँ किसकी बात कर रहा? क्वेश्चन में कहा गया है कि वो सारे डिजिट्स, नॉन जीरोस मतलब नॉन जीरो डिजिट. डिजिट किसको बोलते हैं चैतन्य? इसको डिजिट बोलते हैं. टोटल 10 डिजिट होते हैं. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. ये क्या कहलाता है चैतन्य? ठीक है, ये सब डिजिट्स. अब क्वेश्चन, ये रूल आपको बता रहा है कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट. कैसे होते हैं चैतन्य? सिग्निफिकेंट मतलब जीरो को छोड़कर जितने भी बाकी के 9 डिजिट्स हैं, ऑल दीज 9 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. लेकिन जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन कुछ खास केसेस में जो आपने अलग अलग रूल्स के माध्यम से समझे हैं. तो अब जैसे ही रूल कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर आपके पास कोई एक नंबर है, चाहे मैं उसको 77 लिखूं, 77.00 लिखूं, या फिर 80.0 लिखूं, या 80 लिखूं, या 800 लिखूं, या 88 फिर 0 लिखूं, इन सब में एक चीज तो हमेशा सिग्निफिकेंट है, या एक डिजिट, एक तरह का डिजिट तो हमेशा सिग्निफिकेंट है. देखो, दो तरह के डिजिट्स हो सकते हैं. इस तरीके से हम डिजिट्स को दो भागों में बांट सकते हैं चैतन्य. एक को बोल सकते हैं जीरोस और दूसरे को बोल सकते हैं नॉन जीरोस, मतलब जो जीरो नहीं है. तो अब वो सारे डिजिट्स जो जीरो नहीं है वो हमेशा कैसे होंगे चैतन्य? बोलो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट. कैसे होंगे बच्चा? सिग्निफिकेंट. राइट. तो अब कहने का मतलब है, हम दूसरों को अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ एक बात कर रहे हैं नॉन जीरो डिजिट की. तो अब ये 8 सिग्निफिकेंट है, ये 8 भी सिग्निफिकेंट है, ये 8 सिग्निफिकेंट है, 7 और 7 सिग्निफिकेंट है. यहाँ बताओ, दोनों 7 सिग्निफिकेंट होंगे? होंगे? yes, sir. बिल्कुल नॉन जीरो. बिल्कुल. ये भी सिग्निफिकेंट होगा बच्चा, 7 होगा, हाँ या ना? यस सर. है ना? उसी तरह से 8 सिग्निफिकेंट होगा, हाँ या ना?
और 80 में बताओ 80 8 सिग्निफिकेंट होगा, राइट? बस इसकी बात कर रहा है ये। बाकी जो जीरोस हैं उसके बारे में, बाकी के जितने भी हमारे रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, वो बात करते हैं। पहले वाला रूल सिर्फ बता रहा है जो डिजिट्स में दो प्रकार है चैतन्य, वन इज जीरो एंड द अदर इज नॉन जीरो। तो फर्स्ट वाला रूल सिर्फ इन नॉन जीरो के बारे में एक रूल या एक बात इंट्रोड्यूस करता है। क्लियर हो रहा है क्या बच्चा? क्लियर है ना? तो अब ऐसे तुमने जो सवाल पूछा 0.7 या 7.0 या 0.7.00, 0.77, 0.700 and 0.777, 0.0007, 0.7000। अब बताओ बच्चा एक एक करके इनमें क्या क्या होना चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, रूल्स को देखकर एक एक करके बताओ चैतन्य। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन। यस बोलो बच्चा। 0 सर 7 ये होगा सिग्निफिकेंट नंबर होगा। नहीं ऐसे नहीं, शुरू से फर्स्ट डिजिट से शुरू करो। बताओ ये वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा क्या? नो सर, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये बताओ सबको। सर क्योंकि जो पहला रूल है अगर उसके हिसाब से चले तो ऑल नॉन जीरोस ऑल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये तो नॉन जीरो की बात हो गई, तो इसको आप इस जीरो पे अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर पर जीरो वाला रूल अप्लाई करना है। और पढ़ो रूल्स। उसके बाद फिर सर जो हमारा सेकंड रूल है, सेकंड रूल कहता है कि ऑल एक मिनट आपने रिवाइज किया है बच्चा घर पे? सच बोलना। सर मैंने फर्स्ट थर्ड और फोर्थ बस किया, सेकंड वाले में ढंग से लिख नहीं पाया तो मैं रिवाइज नहीं कर पाया। तो पूछना चाहिए ना बच्चा, ऐसा होता है तो नहीं लिख पाते तो वो सेकंड वाला लिख नहीं पाया। ठीक है, उसी समय जैसे मैं आप लोगों से जब क्लास में रब करने के पहले पूछता हूँ ना कि बच्चा लोग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसी समय बोला करो, ठीक है? अदरवाइज ऐसे ना नॉलेज रह जाएगा और अगर गैप आया ना तो आगे चीजें बिल्डअप नहीं हो पाएगी। मतलब जैसे ऐसा सोचो अपन एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, और बिल्डिंग में कहीं एक ईंट अधूरी रहेगी तो क्या होगा? बिल्डिंग बाद में कैसी हो जाएगी? ढह जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? जैसे एक बीच में गैप रह गया, सपोज ये वाला, सपोज यहाँ एक गैप रह गया और बाकी सब ईंटें आ गई, तो अगर ऐसा करोगे और नहीं पूछोगे तो फिर बाद में वो चीज आपको खुद ही को चैलेंजिंग लगेगा अरे ये ईंट कहाँ गई, अरे मेरे पास ये नॉलेज क्यों नहीं है, तो नहीं पता। तो यही चीज इसीलिए उसी समय बोलना है, ठीक है? वेट नहीं करना है टीचर का पूछने के लिए। फिर टीचर पूछे फिर आप बोलो कि सर मैंने तो नहीं किया या मुझे तो उस समय नहीं आया था। ऐसे नहीं करना है, जब नहीं आया उसी समय पूछना है, ठीक है चैतन्य? विदाउट एनी लेजीनेस। ऑलराइट, श्योर? यस सर। तो नहीं करोगे? यस सर। सर समटाइम्स ना यहाँ पर नेटवर्क अच्छा नहीं आता है तो फिर वो टाइप करने से भी जाता नहीं, इसमें मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं, ऐसे जाता है क्लास के एंड में बता लिया करो, क्लास के एंड में बता लिया करो, है ना? या फिर क्लास के बाद मैसेज कर दिया करो। ऐसा तो नहीं है कि आप फोन नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, वैसे कर लो, क्लास के बाद मैसेज छोड़ दो। बट कहने का मतलब है आपको, देखो मैं एक बहुत अच्छी बात आप सब लोगों के लिए बताता हूँ, दिस इज नॉट फॉर वन स्टूडेंट, फॉर एवरीवन। तो चलो ये जो 2 साल का सफर है ना, लाइक जब आप क्लास 11th और 12th में होते हो, इतना सारा नया नॉलेज हमारे तरफ दौड़ा चला आ रहा है ना कि हमको इस सबको एम्ब्रेस करना है। लेकिन इस दौरान ऑल अलोंग दिस टाइम ऐसा होगा कि एक बार में हर चीज समझ में नहीं आएगी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि समझ में नहीं आ रही तो इट इज योर फॉल्ट। नो, नॉलेज का पहली बार में आपके दिमाग पर दस्तक देना इज वेरी नेचुरल। अगर आप फर्स्ट टाइम में उसको नहीं समझ पाओ तो फिर पूछ लो, अपने आप को जज नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट, नेवर व्हेन यू आर नॉट जजिंग योरसेल्फ, प्लीज आस्क द फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन यू आस्क इवन द सेम कॉन्सेप्ट 10 टाइम्स, राइट? ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आप एक या दो बार में अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि पूछो जब ना बने। और तीसरा, कभी भी जब एक बार ना बने तो छोड़ना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो नहीं बना तो अब तो जाने दे, ये नहीं होगा, नहीं, उसको मार्क करके रखना है। यू हैव टू मार्क इट। जब भी फैकल्टी से सेकेंड टाइम मिलो, खुद से पूछना है कि सर मुझे ये चीज दोबारा प्लीज बता दीजिए, राइट? ये हमेशा आदत डालनी।
not only you Chaitanya, this is not for you, right? This is all for each one of you. Significant figures तो बहुत बेसिक है इस पूरे इमारत का. अभी तो हम इमारत के टॉप तक पहुंचेंगे, तब तक आप ऐसे ऐसे चैप्टर्स पढ़ोगे जो आज तक कभी आपने सोचा ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी ढंग से आप लाइफ को या दुनिया को देख सकते हो, राइट? फिजिक्स विल गिव यू दैट स्पेक्टेकल्स, राइट? तो दुनिया को देखने का वो पर्सपेक्टिव देगा फिजिक्स जो आपने पहले कभी नहीं देखा. तो इंटरेस्टिंगली उसको मजे से लेना है, और जहां समझ में नहीं आए उस समय मार्क कर लेना है, और पूछना जरूर है, भले उस समय या बाद में, लेकिन पूछना जरूर है, राइट? ओके, तो चैतन्य सेकंड वाला बताओ कैसा होना चाहिए. The second rule ये कहता है कि all zeros between two non-zero. नहीं वो सब मत पढ़ो. सेकंड डिजिट कैसा होना चाहिए? सिग्निफिकेंट ऐसा. ठीक है, ये सिग्निफिकेंट ये नॉट सिग्निफिकेंट. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1, राइट? अब सेकंड वाले रूल में देखो, सेकंड वाले रूल में बताओ जो पहला 7 है वो कैसा होगा? सर सिग्निफिकेंट है. क्यों? क्योंकि सर all non-zeros are significant. First rule. Because non-zeros are significant. ये इसके बारे में बताओ, इस जीरो के बारे में बोलो. सर जो सेकंड वाला होगा वो जहां तक कि नॉन सिग्निफिकेंट होगा. नहीं बच्चा, ये सिग्निफिकेंट होगा. ऑल द जीरोस. सॉरी सर, हाँ सर, डेसिमल पॉइंट वाला रूल. यस सर. लेट मी फिनिश बच्चा, लेट मी फिनिश. एक बार मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ तो लेट मी फिनिश. तो पॉइंट है कि जब भी आपने एक नॉन जीरो नंबर से शुरुआत की है और डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, तो वो नंबर होता है सिग्निफिकेंट फिगर. अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसमें? 2 आए ना? यस सर. इसके बाद वाला, यस सर. इसके नीचे वाले के लिए बोलो. सर सिग्निफिकेंट है सर. कौन सा बोलो? 7 है. 7 सिग्निफिकेंट है. क्यों है सिग्निफिकेंट? यस सर. सर क्योंकि ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट करके. और इस जीरो और इस जीरो के ऊपर कमेंट करो. सर वो नहीं है. क्यों? सर क्योंकि जो थर्ड रूल बोलता है व्हेन देयर इज. सुनो बच्चा, वो सॉरी है, ध्यान से सुनो. इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तुम जब मैं कहता हूँ ना ऐसा होता है. देखो मैं आपको सिर्फ आपकी बात नहीं है चैतन्य, ये ना एक जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है. जब हमारे मन में काफी कुछ होता है ना बोलने के लिए, तो हम कई बार जब सामने वाला बोल रहा होता है तो ये सोचने लगते हैं कि जैसे ही वो बोलना बंद करे तो मैं कुछ बोलना शुरू करूं, और उस चक्कर में हम वो सुनना भूल जाते हैं जो वो अभी कह रहा है. तो इसीलिए ध्यान से सुनो चैतन्य, है ना? आई अंडरस्टैंड दैट दिस स्टेट इज नेचुरल व्हेन देयर आर सेवरल डाउट्स कमिंग इन योर माइंड. इसीलिए देखो आप लोगों को एक हैबिट बनानी है. देखो जब मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ ना, सो आई कीप अ वेरी शॉर्ट नोटपैड विथ मी. आपको भी ऐसे एक नोटपैड अपने साथ रखना है आपकी लेक्चर कॉपी के अलावा, ठीक है? और इस नोटपैड के साथ एक पेंसिल या पेन रखनी है. जब भी मैं कुछ बोलूं, कुछ समझ में ना आए, तो हमारा दिमाग नेचुरली क्या करेगा मैं बता रहा हूँ. दिमाग बोलेगा पूछ पूछ पूछ, और उतनी देर में जो सामने वाला बोल रहा है वो आप सुनना ही रह भूल जाओगे. इस कंडीशन से हटना है, बचना है, और फिर भी प्रेजेंट में टिकना है. सपोज कुछ नहीं आया, सर रूल नंबर 2 एग्जाम्पल, बस ऐसा छोटे में विद इन 1 or 2 वर्ड्स लिख लिया आपने, राइट? ये आस्किंग चीजें हैं. फिर जैसे ही सर ने टाइम दिया वो पूछते गए वहां से. मतलब पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, 1-2 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिससे पूरा डाउट याद आ जाए. उसी से प्रेजेंट में रहना टिकोगे या सीखोगे, है ना? जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना सामने वाला क्या बोल रहा है उस ज्ञान को एब्जॉर्ब कर पाओगे. जितना अपने ख्यालों में खोए रहोगे उतना मिस आउट कर दोगे ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट. एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन, है ना? आज से आप लोग एक इस तरह का नोटपैड अपने पास रखेंगे. है तो बहुत अच्छी बात है, घर पर नहीं है तो किसी स्टेशनरी शॉप से एक ऐसा नोटपैड रखेंगे. और जब मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ नहीं आया समझ में, डू नॉट कीप थिंकिंग अबाउट इट, उसे लिख लो. और जब डाउट पूछने के लिए मौका दिया जाए तब पूछ लो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? आज से एक ऐसा क्लैरिटी पैड बोलेंगे इसको अपन, इसके जरिए हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी, है ना? तो एक क्लैरिटी पैड सबको रखना है आज से अपने पास, राइट? और जब आपके पास एक क्लैरिटी पैड आपने बना लिया, ले आए, तो टुमारो मॉर्निंग आई मस्ट गेट द पिक्चर ऑफ योर क्लैरिटी पैड, राइट? बाय 9 o'clock इन द मॉर्निंग यू हैव टू सेंड मी कि सर देखो ये मेरा क्लैरिटी पैड है, आज से मैं इसमें लिखना शुरू कर रहा हूँ, राइट? So it is compulsory for everyone to maintain a clarity pad with all of you. ठीक है?
ये लेक्चर नोट्स में जो भी चीजें नहीं समझ में आई या बोलते वक्त, राइट, उसको आपको लिखना है और फिर पूछना है, और जब हो जाए, राइट, हो जाए तो उस पे ऐसे टिक कर देना, राइट, और चाहो तो उसका यहाँ पे ब्रीफ में आंसर लिख देना क्लास के बाद, राइट, क्योंकि क्लास के बाद मेमोरी फ्रेश रहती है, फटाफट फटाफट लिख लिए कि क्या बताया सर ने। ऐसे याद होंगी चीजें और आप इतने मजबूत हो जाओगे उन कॉन्सेप्ट में कि आपके दोस्त आपसे बात करके दंग हो जाएंगे, बोलेंगे तुझे इतने छोटे छोटे चीजों की इतनी अच्छी समझ कैसे है। जहां एक तरफ बहुत सारे बच्चे चीजों में ऊपर में उलझे रह जाते हैं, उतना आप चीजों को इतना गहराई से समझ जाओगे और ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे कि लोग दंग हो जाएंगे। सेट एग्जाम्पल्स, राइट, सेट एग्जाम्पल्स बाय अडॉप्टिंग टेक्निक्स लाइक दीज। देखो, मैं ऐसी टेक्निक नहीं है जो सिर्फ आपको कह रहा हूं आप करो, आई फॉलो समथिंग ओनली देन आई टेल इट आउट टू पीपल कि आप भी करो। ठीक है चैतन्य, स्टार्टेड फ्रॉम टुडे एंड एवरीवन इन द क्लास, राइट, बोलो बच्चा। अब रूल बताओ एक एक करके, ये सारे सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट कौन से हैं और क्यों हैं। यस बच्चा, गेट गोइंग। सर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड वन ना? बोलो। तो सर जो थर्ड वन है उसमें जो 7 है वो तो सिग्निफिकेंट है। क्यों है? क्योंकि सर ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। और उसके बाद फिर 0 और 0 भी है। क्यों है? सर उसका रूल अभी ये जहाँ तक कि ये है फोर्थ वाला है, जब किसी भी इसमें मतलब कि अगर कहीं पर भी अगर डेसिमल पॉइंट लग जाता है तो उसके बाद के जो 2 जीरोस है वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर कहीं पर डेसिमल पॉइंट लगा, जैसे फोर्थ रूल में सर कहा, जैसे आपने बताया है कि अगर किसी भी रूल बच्चा, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सर यार नॉट, अरे हाँ हाँ सॉरी, सिग्निफिकेंट वो सर पॉइंट में लिखा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट, सॉरी सर, जो भी नंबर्स बाद आते हैं, जो भी नंबर्स पॉइंट के बाद आते हैं बच्चा, जो भी जीरोस पॉइंट के बाद आते हैं, वो सब हमेशा कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं चैतन्य, आपको आज के लिए माफ करते हैं। ये सारे के सारे आप घर से बनाकर लाओगे, राइट। अभी के लिए कैंसिल करते हैं फ्रॉम आस्किंग यू। आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो, राइट। आई विल बी अपलोडिंग माय वीडियो फॉर द क्लासेस जो अब तक हो गई हैं, है ना। उन वीडियोस को देखो, राइट। आप लोग जैसे भी गूगल फॉर्म भरोगे जो मैंने आपको सेंड किया है, तो आप लोगों को एक खास वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आई विल सेंड यू द लिंक, राइट। आप उस वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को एक्सेस करना है वाया योर ईमेल आईडी, और आप फिर एक एक करके सारे क्वेरीज को उसमें आपके उन लेक्चर्स को दोबारा देखो जो आपको क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इससे आपका सिलेबस पुराना वाला कवर भी हो जाएगा, जो कुछ छूट गया है बाय नेटवर्क इश्यूज या एनीथिंग लाइक दैट, उतने तक फास्ट फॉरवर्ड कर लो। जो पता है फास्ट फॉरवर्ड कर लो, जो नहीं समझ में आया वो पार्ट दोबारा सुन लो। ठीक है, सो आई विल बी सेंडिंग दैट लिंक, राइट चैतन्य बच्चा, एंड देन आप उससे देखो, और फिर उसके बाद फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कल क्लास में बताओगे। ठीक है, तो नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट स्टूडेंट। मीनवाइल कोई बात नहीं बच्चा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंड, बिकॉज ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, कॉज बहुत जेन्युइन है नेटवर्क इशू की वजह से। अगर आप नहीं समझ पाए हो, इट्स वेरी ऑल राइट बच्चा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेट अस टेक अदर क्वेश्चंस। टेकिंग चैतन्य, आपके एक और डाउट पे आते हैं। लेट अस नाउ चैतन महिवेश आल्सो टेल हर क्वेरी। हाँ महिवेश बच्चा बोलो। सर मुझे रूल नंबर 5 के एक लास्ट लाइन लिखी थी, वो समझ नहीं आई। पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है। दोबारा पढ़ो, पूरा 5th रूल दोबारा पढ़ो। Whenever a number starts with decimal point, then zeros just after decimal are not significant. Just one minute बच्चों। तो अभी आपने कहा whenever a number starts with डेसिमल पॉइंट। सबसे पहले इसका मतलब बताओ, डेसिमल पॉइंट से शुरू होने का क्या मतलब होगा बच्चा? 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 पॉइंट समथिंग के बाद अगर कुछ भी आ रहा है तो नंबर स्टार्टिंग विद डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद का लाइन पढ़ो।
यस बच्चा. Then zeros just after the decimal are not significant. That is, the initial zeros after decimal point are not significant. एक मिनट इसी लाइन को दोबारा पढ़ो, फिर से पढ़ो. whenever, फिर पढ़ो. whenever a number starts with decimal point, then zeros just after decimal are not significant. Stop here बच्चा. Initial zeros. एक मिनट बच्चा, stop here. ठीक है, देखो तो अब पहला पॉइंट था whenever a number starts with a decimal point, वो अपन ने लिख दिया. फिर सेकंड पॉइंट क्या है? then the zeros just after decimal, मतलब अगर डेसिमल के ठीक तुरंत बाद zeros हैं, zeros just after decimal point are not significant. Zeros just after decimal point are not significant. So let's say I have a number 0.009, right? तो ये सारे zeros अगर नंबर 0 से शुरू होता है तो पॉइंट के बाद आने वाले ये सारे zeros कैसे हो जाते हैं? Not significant. कैसे हो जाते हैं? Not significant figure. तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर बच जाता है, that is 9. अब और ध्यान से सुनो, लिखता है that is initial zeros. Initial का मतलब होता है शुरुआती, right? Initial zeros, these are called as initial zeros. Initial zeros after decimal point, right? Initial zeros after decimal point are not significant. उसी चीज को उसने दोबारा कह दिया है, right? और उसने एग्जाम्पल दिया है आपको. क्या एग्जाम्पल दिया है? देखो कि आपको दिया गया है 0.0034, राइट? सपोज एक नंबर है, तो इस ये नंबर को सबसे पहले वैलिडेट करो. क्या ये रूल लगेगा इस पे? हाँ बिल्कुल लगेगा. क्यों लगेगा? बिकॉज दिस नंबर इज स्टार्टिंग विथ अ 0, है ना? तो ये नंबर एक डेसिमल पॉइंट से यानी कि 0 से शुरू हो रहा है, और इसके बाद जो zeros that are there just after the decimal point, ये कैसे हो जाएंगे? Not significant. कैसे हो जाएंगे महेश बच्चा? Not significant, right? अब क्लियर है बच्चा? I'll unmute you. दोबारा से ध्यान से एक बार पूरे लॉ को फिर से पढ़ो और अब बताओ. हाँ बच्चा, पार्ट वाइज पढ़ो. जब कोई एक बार में समझ में ना आए ना, तो उसको खंडों में बांट दो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और फिर पढ़ो, अपने आप क्लियर हो जाएगी. देखो अब पढ़ो. Whenever a number starts with decimal point, then zeros just after decimal are not significant. That is, initial zeros after the decimal point are not significant. हाँ क्लियर हो गया. एक और एक काम करो, लाइन है. यस सर, बस एक छोटा सा डाउट है. एक मिनट महेश, व्हाट फील्स टू मी लाइक, ऐसा हो रहा है कि शायद आपके एंड पे जो नेटवर्क का लैग है ना वो बहुत हैवी है. तो जो आप बोल रहे हो ना वो आवाज बहुत लंबी हो जा रही है. तो अपन उस चीज से उभरने के लिए काम करते हैं. आप मुझे आपका जो डाउट है उसको चैट पर लिखकर भेजो, so that I can tell you the solution. Yes Mahesh, get to it. Right? In case मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है तो I'll write it by chat to Mahesh that kindly send your question here on या in the chat box. ठीक है, यहाँ पर आप अपना क्वेरी भेजिए तो I'll clear it out, right? ठीक है. Okay, so Veeraj has asked a question कि sir significant figures का महत्व क्या है? Why are we exactly using the significant figures? उसके नाम से क्लियर हो रहा है. देखो significant figures और याद करो हमने शुरुआत ही इससे की थी. So I'll unmute you बच्चा. Veeraj, right, just a minute. So राइट वीरज, जब याद करो हमने शुरुआत कैसे की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, क्या बताया था? याद करो कल की क्लास में कैसे शुरुआत किया था?
एक स्केल से सर रीडिंग स्केल लिया का था, एग्जांपल था। है ना? यस सर। तो वही चीज उसके एप्लीकेशन की ओर आपको एक हिंट था क्या, कि होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी कभी इंजीनियरिंग लेवल में, राइट, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू टेक योर जेई पेपर एंड बिकम एन इंजीनियर, राइट, फ्रॉम सम टाइम फ्रॉम नाउ, so engineering की दुनिया में you have n number of calculations involved, n number of mathematical understanding involved, right? तो let's say, है ना, जैसे अभी मैंने एक पेट्रोल पंप का छोटा सा एग्जांपल लिया, राइट, कि अगर सपोज आपके पास अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पेट्रोल का बिल आया, मान लेते हैं कि आपके पास अभी 50 पैसे चलते हैं, राइट, और रुपीस भी चलते हैं, आपके पास रुपीस के भी नोट्स हैं, right? You have 1 rupee, 2 rupee, right? You have 5 rupee coins, you have 10 rupee notes, you have 50 rupees notes, you have 20 rupees notes, you have 100 rupees notes and so on. और आपके पास 50 पैसे की रेंज में भी सब कुछ है. सपोज अब आपका पेट्रोल का बिल आता है 10.48, है ना, 10.48, और सपोज किसी का बिल आता है 9.30. तो बताओ वीरज, तुम पेट्रोल पंप वाले को दोनों केसेस में, केस ए में और केस बी में, कितने रुपए पे करोगे फ्रॉम द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव? मैंने तुमको बता दिया कि तुम्हारे पास ये अवेलेबिलिटी है, 50 रुपए के कॉइन्स हैं और 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के इस तरह से नोट या कॉइन्स हैं. अब क्या करोगे वीरज, बताओ? सर केस ए में 10 रुपीज 50 पैसे देंगे. क्यों 50 पैसे क्यों दे दोगे? 50 है ना, और राउंड अप करके फिर 50 आ जाता है. बिकॉज तुमने ये सोचना लाइक जरूरी समझा कि भाई इस चीज में ना राउंड ऑफ जैसा कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को और ऑर्गेनाइज ढंग से समझने का नाम, इंजीनियरिंग की दुनिया में समझने का नाम इज नथिंग बट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो अभी तो ये बहुत छोटा सा केस था पेट्रोलियम. अच्छा, सेकंड वाले के लिए बताओ, तुम्हारा कहना है तुम यहाँ पर उसको 10 रुपए 50 पैसे दोगे. व्हाट अबाउट द सेकंड केस बचा? यस वीरज, एक मिनट. सर हाँ बोलो. सर सेकंड केस में 50 पैसे ही है अपने पास. सेकंड केस में आपके पास 9 रुपए भी हैं अलग से और 50 पैसे भी हैं अलग से. यस सर. तो अगर आप चाहो तो उसको बोल सकते हो, यार मैं 20 पैसे एक्स्ट्रा क्यों दूं, आई वैल्यू माई मनी, मैं 20 पैसे एक्स्ट्रा क्यों दूं? तो वो भी बोलेगा सर ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप 9 रुपए दे दो, राइट? तो आप उसको क्या करोगे, आप 9 रुपए देके आ जाओ. हाँ या ना? कर सकते हैं ऐसा? यस सर. क्योंकि 20 रुपए इज अ वेरी बिग अमाउंट, और अगर मैं 20 पैसे इज अ वेरी बिग अमाउंट व्हेन यू कंपेयर इट विद 30 पैसे, राइट? जैसे अगर आप सपोज या 50 पैसे के टर्म्स में देखना चाहो तो उसका कितना परसेंट हो जाएगा? ये 40%. हाँ या ना? हाँ या ना? राइट? तो कहने का मतलब है 40% ज्यादा इनकम देके तुमको एक सामान लेना चाहोगे क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव समथिंग फॉर 100 रुपीज, वुड यू वांट टू बाय दैट एट 140 रुपीज? वुड you pay this extra amount? No, right? Correct? उसी तरह से I'll give you one example. Let's say if something is costing you let's say 1000 rupees, तुम क्या उस चीज के लिए 1400 रुपए यानी कि 1400 देना पसंद करोगे? If that thing is available to you for 1000 rupees, बताओ? नहीं, right? तो इसी वजह से कुछ वैसे ही हिसाब, एग्जैक्टली नहीं बट कुछ वैसा ही हिसाब यहाँ पर भी लग रहा है. क्लियर हो रहा है? ये मैंने तुमको एक बहुत डेली लाइफ एग्जांपल दिया क्योंकि तुमने अपने आसपास आज तक ये देखा है. अभी तक इंजीनियरिंग की दुनिया से तुम्हारा वास्ता नहीं हुआ है. तो अब इंजीनियरिंग की दुनिया में क्या होता है, आप कैलकुलेशंस करते हैं. लेट्स से आप एक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं. अभी हम नहीं जानते सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उसके नाम से समझ लो सेमीकंडक्टर, मतलब जो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है उतना अच्छा नॉन कंडक्टर भी नहीं है, कुछ इन बिटवीन है. आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो फॉर एग्जांपल और एक सेमीकंडक्टर डिवाइस की रचना कर रहे हो, राइट? यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड यू आर मेकिंग अ सेमीकंडक्टर, राइट? तो अब क्या करोगे, तुमको सेमीकंडक्टर के लिए एक मेजरमेंट आया है कि तुमको इतना ही बड़ा सेमीकंडक्टर बनाना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, राइट? और अब तुम्हें अपने मशीन में वैल्यू इनपुट्स करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो आपको लेंथ कही गई है दैट इज लेट्स से 1.5 mm. कितनी? 1.5 mm. और इसकी जो आपको थिकनेस कही गई है दैट इज
0.5 mm। कितनी बच्चा? 0.5 0.5 mm। आपको इतने 0.5 mm और 1.5 mm का एक क्या बनाना है? सेमीकंडक्टर बनाना है। तो एज एन इंजीनियर सेमीकंडक्टर। है ना, एज एन इंजीनियर सपोज आप मशीन में एंट्री करना चाहते हैं सरफेस एरिया। अब सपोज इस सेमीकंडक्टर की आपको कोटिंग करनी है। क्या करना है नीरज? कोटिंग करनी है, ठीक है। तो अब इस कोटिंग कहाँ पे करोगे? Yes, इसके sir. सरफेस पे करोगे, हाँ या ना? सरफेस पे करोगे। यस सर। तो इस सरफेस के लिए कितना पेंट लगेगा, कितना पेंट लगेगा, तुमको ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसका सरफेस एरिया। क्या निकालना पड़ेगा वीरज? इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? एक रेक्टेंगल की अगर ये फॉर्म में है, इसको और भी क्लियरली देखो यहाँ पर, राइट। आई विल ड्रॉ अ पार्टीशन हियर। अब So length times breadth। आप एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी में हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, उसका नाम है अप्लाइड मटेरियल्स, चेक करना, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द कंपनीज व्हिच मैन्युफैक्चर्स सेमीकंडक्टर मटेरियल्स फॉर डिफरेंट अदर कंपनीज, राइट। तो सपोज अब आप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके लिए आपको लेंथ और ब्रेथ कंपनी ने दे दिया, आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसने आपको बोला है कि दिस इज 0.5 mm, दिस इज 1.5 mm का लेंथ और ब्रेथ, है ना। अब आपको इस सेमीकंडक्टर को उसको पेंट करके देना है, आपने बना लिया है। तो आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसका एरिया, हाँ या ना? एरिया निकालना पड़ेगा, Yes, sir. राइट। अच्छा अब निकालो, करो निकालो, 15 into 5 कितना होता है बताओ? So 15 into 5। 75, हाँ या ना? Yes sir। अभी पॉइंट को हटा देते हैं, 75 होगा, राइट। अच्छा अब Yes, तुमने sir। क्या किया? मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब तुमने 0.5 से 1.5 mm को क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। तो अब हमारे पास इस 75 हमने पहले लिखा, बिकॉज देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ आंसर ऐसा कुछ आएगा, हाँ या ना? Yes। राइट। अच्छा Yes, sir। अब दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनो, यहाँ कितने आ गए हैं शुरुआत में? 0.5 में कितने सिग्निफिकेंट 1। फिगर्स हैं? 1। अच्छा यहाँ सेकंड वाले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनो, बोलो। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब जैसे आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स गिने, ठीक है, अब दोनों में मिनिमम कौन सा है बताओ? 1 या 2? So 1। 1। इसका मतलब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए उसके हिसाब से? 1। 1। इसका मतलब तुमको इसको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes sir। करो राउंड ऑफ, कितना हो जाएगा? बोलो 5 है ये, Sir। 5 है और इसके Yes, पहले sir। का डिजिट ऑड है, तो क्या हो जाएगा बोलो ये? So +1। हाँ करो, 0.8। करो 0.8। तो अगर अब कंपनी को तुमको रिपोर्ट करना है, कंपनी ने बोला है एक डेसिमल प्लेस से ज्यादा में हमको रिपोर्ट मत करना, कंपनी को एक डेसिमल प्लेस में ही चाहिए आंसर, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो Yes, आंसर sir। निकालोगे और फिर कंपनी का एक ऐसा कॉलम होगा कि भाई मुझे रिपोर्ट करो कि आपके इस जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो आप मुझे सेमीकंडक्टर बना के दे रहे हो, आप ऐसे एक कंडक्टर नहीं बनाओगे, ऐसे आपके पास करोड़ों सेमीकंडक्टर्स के बैचेस हैं। तो अब ये जो आप स्पेसिफिकेशन लिख रहे हो, आप बताओगे कि पर सेमीकंडक्टर जो मैंने सर ये जो एरिया छोड़ा है ना, ये 0.8 mm का स्क्वायर है। क्लियर हो रहा है बच्चा? Yes sir। कैसे कैसे एप्लीकेशन आता है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन आता है, क्लियर है? Yes sir। है ना। तो ये मैंने आप लोगों को पेट्रोल पंप का एग्जांपल क्यों दिया? बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिससे आप दिन रात रूबरू हो रहे हो, अपने आसपास देख रहे हो, राइट। लेकिन ये सेमीकंडक्टर वाली चीज आपने आज तक देखी नहीं है, इसीलिए अगर मैं अचानक से एग्जांपल दे दूं तो यू माइट एंड अप गेटिंग बैकवर्ड कि अरे अरे सर ये कहाँ की बातें कर रहे हैं, राइट। बिकॉज सर इंजीनियरिंग की दुनिया से बहुत अच्छे से रूबरू हैं, इसीलिए वो आपको इस तरह के इंसाइट्स दे सकते हैं कि भाई वहां पर इनका क्या महत्व होता है, राइट। क्लियर हो रहा है बच्चा? इंजीनियरिंग इनसाइट क्लियर हो रही है अब इसकी? वीरज एक मिनट, आप अगर म्यूट हो गए हो तो आई अनम्यूट यू। Yes sir। Clear। अच्छे से एकदम, है ना? Yes sir। कि आपको सपोज सरफेस एरिया, अच्छा एक और जगह होता है जहाँ पे सरफेस एरिया जरूरी होता है। अपने कैलकुलेटर्स पर एक सोलर पैनल देखा है क्या? कभी ध्यान दिया है कि कैलकुलेटर्स पर एक Yes sir। सोलर पैनल लगा होता है, हाँ या ना? हाँ सर। तो हाँ। अब वो सोलर पैनल भी कभी ना कभी तो इंडस्ट्री में बना होगा, हाँ या ना, राइट। हाँ। तो अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सोलर पैनल जब मैन्युफैक्चर हुआ था, लेट्स से आई स्विच ऑन माय वीडियो and show you all the calculation I'm talking about, right? Let's say I have
this calculator with me, right? Let's say I have this calculator with me, right? So इस calculator में ऊपर top right पर देखो ये solar panel लगा है, ठीक है? अब I might wish to find out what is its length and breadth and then calculate its area. So suppose I'm measuring its length, it comes out to be 3 point around, it's around 3 centimeters. ये लगभग 3 centimeters के length है इसका, and इसका breadth is around 1 centimeter. तो ये लगभग 3 into 1 centimeters का एक यहाँ पर सभी लोग देखेंगे 3 into 1 centimeters का सोलर सेल लगा हुआ है, राइट? तो अब जब सोलर सेल मैन्युफैक्चर होता है, बात ये होती है कि सोलर सेल में क्या होता है, ऑलवेज फॉर एनी सोलर सेल द पॉइंट इज कि in a solar cell surface area is very important for amount of light being absorbed. क्या करता है सोलर सेल, वीरज? सर सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेरी गुड। एक सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे केस में जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कैसा होगा, ज्यादा कन्वर्जन, हाँ या ना, राइट? यस। तो अब अपने कंप्यूटर को तुमको बताना तो पड़ेगा कि मेरी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, राइट? और उसी के हिसाब से, उसी प्रिसाइसनेस से तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारी मशीन को कमांड करेगा कि हाँ भाई इतने बड़े सेमीकंडक्टर चिप्स का या इतने बड़े सोलर सेल्स का आप डिजाइन तैयार कीजिए, हाँ या ना? पता है ये सारी चीजें जो कि आप मतलब फ्रॉम लाइक इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज सो मच कंप्यूटराइज्ड दैट यू जस्ट गिवन एन इनपुट टू द मशीन। उसे एक खास टर्म होता है, उसे कहते हैं 3D प्रिंटिंग, राइट? So what 3D printing does, it can be used to manufacture materials. Just for example, when I was in the IIT, I have worked on this 3D printers, right? So I have manufactured several things on a 3D printer. So while I was in IIT Gandhinagar, right? In IIT Gandhinagar, I used to work on some semiconductors. There were many of my friends जो 3D printers पे काम करते थे। तो हम लोगों को क्या करना होता है, on a 3D printer, you have to give those values कि भाई मेरे पास लेंथ और ब्रेथ ये होनी चाहिए, उस हिसाब से वो चीज, उस ढंग से वो 3D प्रिंटर एक ऐसा मशीन होती है जो लेंथ ब्रेथ इस तरह से मूव इन आउट इस तरह से मूव करता है, एंड लेयर बाय लेयर तुम्हारे पूरे डिवाइस को बिल्ड कर देता है। तो जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें 3D प्रिंटिंग से ऑल ओवर द वर्ल्ड मैन्युफैक्चर हो रही है। ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस को मशीन को इनपुट्स देने के लिए, और कई बार मशीन में जो इनपुट आया उसको अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करने के लिए तुमको एक प्रिसाइज नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए होते हैं। वहां पर तुम एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के फंडा को। वहां अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें बोलेगा कि हाँ भाई वीरज उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो तुम बोलोगे सर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, मैं तो नहीं जानता। तो फिर तुम्हारा बॉस बोलेगा तो फिर आज से मैं भी तुम्हें नहीं जानता, बाय बाय। समझ रहे हो क्या एग्जाम्पल दिया? कि आपको ये सारी चीजें जो अभी आपके लिए बहुत बड़ा ज्ञान है, वहां जाकर आपके लिए कंपनी में जाकर एक अच्छा इंजीनियर बनकर ये सब कुछ एकदम ऐसा जनरल नॉलेज की तरह आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ओके ओके ठीक है, अच्छा सोलर सेल ऐसे काम करता है, ओके ओके, क्योंकि आप इसके ऊपर काम करोगे फिर, राइट? ये नॉलेज आपका बेस बन जाएगा एंड यू विल वर्क ऑन दिस नॉलेज, राइट? क्लियर हो रहा है बच्चा? एकदम क्लियर अच्छे से कि क्या एप्लीकेशन होती है सिग्निफिकेंट। ये तो एक बहुत बेसिक एप्लीकेशन मैंने बताई है, ऐसी n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, आप जितना गूगल करना चाहे गूगल करो एंड यू विल डिस्कवर इवन मोर, राइट? दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, राइट? यस सर। पक्का क्लियर एकदम? यस सर। ठीक है। एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू आस्क? बाकी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं इफ देयर इज एनीवन विद एनी क्वेरीज, और पूछ लो। यस बच्चा लोग। सो आई थिंक we had one of you, Mahevish and Chaitanya. Chaitanya bacha, I'll just see आपका क्या query था. Okay, Chaitanya and Mahevish. Okay, let me check. So Mahevish is asking, sir, is it important to note that number with 3 significant figures that indicates an accuracy of 1 part of 100? What does it mean? Okay. We'll take that up, Mahevish. We'll take that up. So now let us understand more
by looking at some of your questions. So just having a look at all of your questions, बच्चा लोग. I think one of your classmates, Rahul, is having some issue with joining. So in case he is not being able to connect, तो कोई दिक्कत नहीं है. He can watch the video of this class, which will be made available to all of you. I think from tomorrow onwards. So आप लोग पुराने videos देख सकते हैं, right? So do not worry. Okay, ठीक है. Class, once more, in case to help Rahul, I just wanted to verify if my network is working well. तो अगर मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच रही है, प्लीज रेज योर हैंड. बच्चों, in case my voice is clearly reaching you, please raise your hand. Yes, बच्चों. So to everyone, the voice is reaching. Thank you, class. You can bring your hands down. Then I'll convey to your friend that he can watch this video later with no issues. Right? Okay. All right. So all right. ठीक है. ठीक है. महिवेश, एक काम करो, जो आपने अभी अभी लिखकर भेजा है, राइट, उसको आपने जहां भी पढ़ा है उसका एक फोटोग्राफ लो, राइट, उस पूरे पैराग्राफ का. दिस इज जस्ट वन लाइन, राइट. इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं जो आपने कहा है, इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं वो समझना चाहूंगा. सो इन ऑर्डर टू डू दैट, ऑल यू नीड टू डू, जहां भी आपने पढ़ा है जिस पेज में, उसका एक क्लियर फोटोग्राफ लो एंड सेंड इट टू मी. राइट महिवेश, क्लियर है बच्चा? है ना? Send it to me so that I can discuss this with all of you. All right. So बच्चा लोग, let us now take next question. Let us be more academic right now, है ना? आपके academic queries मुझसे पूछिए so that we can concentrate more on the preparation aspect जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, right? So now let us take other queries. So class, बच्चे लोग, आप लोग आगे की queries पूछो, उसके पहले let us take the doubt of चैतन्या. बच्चा चैतन्या, I am unmuting you. पहले ध्यान से सोच लो आपको क्या बोलना है. शांति के साथ in one line tell your doubt. Yes बच्चा, बोलो. Sir, how we will do a round off in plus and minus of significant figures? कल ही तो आपको बताया था, आप ही ने उसके लिए आंसर दिया था, याद करो. प्लस और माइनस में मैंने आपको रिवाइज करने बोला था, तो आप ही ने सबको बताया था. आपको क्लियर तो हो गया था बच्चा? यस सर. लेकिन जब मैं फिर बनाने बैठा तो सर मेरे को पूरा गोल हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आया. जो आपने लास्ट डिजिट 5 वाला जो रूल था ना सर, वो समझ में नहीं आया मेरे को. तो इस समय पूछा करो बच्चा, अगर नहीं होता है, अब सपोज एक बार में नहीं आता है तो पूछ लिया करो. जब भी आप कभी दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब आप देखते हैं जिन नंबर्स को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है. अभी भी तो मैंने वो एग्जांपल लिया, देखो क्लास की शुरुआत में, यहाँ देखो, ये आपने सुना था ध्यान से बच्चा. देखो यहाँ पर देखो, आज की क्लास में आपने फोकस करके सुना है बच्चा? चैतन्या, हैव यू फोकस्ड इन टुडेज क्लास बच्चा? यस सर. है ना? यस सर. देखो मुझे आप बता दोगे, आप खुद ही बता दोगे, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी. देखो अब इस एग्जांपल को पढ़ो, हमने आज भी तो डिस्कस किया बच्चा. इसमें देखो मैंने क्या लिखा है कि मैंने दो नंबर्स को ऐड किया, है ना? दो नंबर्स को ऐड करने पर दोनों के डेसिमल प्लेस देखे, एक में 1 है दूसरे में 2 है, तो आंसर में हमको 1 डेसिमल प्लेस चाहिए, लेकिन 2 थी इसलिए हमने 1 की तरफ राउंड ऑफ कर लिया. तो जब भी कभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हम लीस्ट डेसिमल प्लेस ले आते हैं, जबकि जब भी हम कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को, तब हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को लीस्ट बनाते हैं. देखो सेकेंड एग्जांपल देखो, है ना? यस सर. वरी मत करो. आई एम फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत चिंता कर रहे हो. चिंता मत करो, शांति से जब जो कहा जा रहा है ना उस पर फोकस करो, अपने आप ही तुमको चीजें समझ में आने लगेगी. ठीक है? डोंट वरी, चिंता मत करो. ठीक है? अब पढ़ो सेकेंड वाला एग्जांपल पढ़ो, क्या दिया है मैंने, पढ़ो उसको जोर से. सर 2.1 multiplied by 0.21 is equals to 0.411. दोनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ो, कितने हैं? दोनों में नंबर ऑफ
सर दोनों में फर्स्ट वाले में 2 है और सेकंड वाले में भी 2 है। ठीक है, अब इसमें जो आंसर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं बताओ, आए कितने हैं? सर इसमें 3। 3 आए हैं, लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी कभी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तब आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। लीस्ट मतलब किसका लीस्ट? यस जिन सर। नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया है उनमें से लीस्ट। तो बस हमने यहाँ पर 3 थे, यस सर। 3 की जरूरत नहीं है। किसकी, कितनों की जरूरत है? बोलो कितनों की जरूरत है बच्चा? 2 की। इसीलिए 2 की। राउंड ऑफ कर दिया, और राउंड ऑफ करने के लिए आपको रूल पता है, अगर लास्ट डिजिट जिसको हटा रहे हैं अगर वो 1 से छोटा है तो यू अलाउ उसके पहले वाले डिजिट को जस का तस। अगर वो 5 से बड़ा है, सपोज यहाँ पे 0.446 होता तो ये राउंड ऑफ होके हो जाता 0.45, है ना, 6 हट जाता और ये वाला नंबर 1 से बढ़ जाता। लेकिन वही अगर यहाँ पर दो यस तरह सर। के केसेस हैं, अगर 0.435 होता या 0.445 होता, राइट, तो दोनों केस में क्या फर्क पड़ता? जब भी कभी 5 को हटा रहे हो तो उसके पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो वो राउंड ऑफ होके इंक्रीज होके हो जाएगा 0.44, लेकिन अगर 5 को हटा रहे हो और उसके पहले वाला नंबर कैसा है? इवन, तो वो जस का तस रहेगा। जैसे अगर 0.865 लिखा मैंने, है ना, और लिखा 0.835, तो अगर 5 लिया है और उसके पहले का नंबर अगर इवन है तो क्या होगा चैतन्य बच्चा? बोलो क्या होगा? वो जस का तस रहेगा, क्योंकि वो कैसा है? रहेगा लेकिन अगर आपने 5 को हटाया और उसके पहले का नंबर कैसा है? ऑड। कैसा है बच्चा? ऑड। तो अब वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 1। क्लियर हो रहा है बच्चा? सर एक डाउट था। यस सर। और अगर वो 8.75 हुआ तो? एक मिनट बचा, पहले अभी एक बात इसको फिनिश करने दो, इसको फिनिश करने दो। तो अभी बताओ पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। यस सर हुआ। क्लियर हुआ? यस सर हुआ। इसको लिखो अपने पास, यस सर। पहले लिखो, चलो इसको लिखो फटाफट, लिख लो पहले। यस सर मैं लिख ही रहा हूँ। हाँ लिखो लिखो, कंप्लीट करो पहले, जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको कंप्लीट करो फटाफट, चलो फटाफट, नो डिले। लिखना बहुत जरूरी है ना, लिखना सीखो, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो। और सुनना भी बहुत जरूरी है ठीक है, तो पूछते हो तो सुनो ध्यान से और उसके बाद अगला सवाल। हाँ बोलो बच्चा। यस सर डन। सर डन। सर सर एक बात पूछना था। चैतन्य सुनो, एक और तरीका है डाउट पूछने का। सर एक बात पूछना था और फटाफट डाउट पूछ दे। नहीं, एक बात पूछना था, रुको, पॉज दो, ताकि सामने वाला समझ सके कि आपको एक डाउट पूछना था, ठीक है? उसके बाद शांति से फिर डाउट पूछो। सर डाउट पूछना था, ऐसा नहीं, आराम से, रिलैक्स, ठीक है? हाँ अब पूछो बच्चा, बोलो। यस सर। रिलैक्स। तो सर एक डाउट ये था कि अगर 8.75 हुआ तो सर जो 7 है वो 5 से बड़ा है, लेकिन सुनो, 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्वेश्चन से फर्क पड़ता है। क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, है ना? तो क्वेश्चन क्या दिया है? सपोज क्वेश्चन आपको दिया गया है राउंड ऑफ टू। जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं, पहले सिर्फ 8.75 अपने आप में क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन सपोज है कि राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। कमला जी और भरत अंकल। कौन भरत? और कमला जी। तो हमारे पास सपोज अगर हमें इसको बाय 1 डिजिट राउंड ऑफ करना है या टू 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे? 5 से बड़ा है या छोटा है उससे फर्क बच्चा नहीं पड़ता। अभी अभी तो कहा कि अगर आखिरी वाला नंबर 5 है और इसके पहले वाला नंबर कैसा है बच्चा? ये देखो कैसा है, ये ऑड है, तो ऑड नंबर क्या हो जाता है? 1 से बड़ा हो जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चा कि ये नंबर 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, ये आखिरी नंबर की बात हो रही है। अब क्लियर है क्या बच्चा कि आपको जिसको राउंड ऑफ करना है या जिस नंबर को हटाना है उस नंबर का 5 से बड़ा
छोटा या इक्वल टू होना जरूरी है। इसलिए याद करो मैंने लास्ट डिजिट की बात की जिसको आपको हटाना है, जहां से आपको नंबर्स हटाने हैं। क्लियर हो रहा है बच्चा अब? हाँ चैतन्य बच्चा बोलो। यस सर, क्लियर नाउ। है ना? तो 7 5 से बड़ा ये नहीं देखना है, 5 किससे बड़ा है, 5 5 की इक्वल है, 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, लास्ट डिजिट को देखना है बच्चा। क्लियर है पक्का? हाँ बच्चा बोलो। यस सर, ऑल क्लियर सर, सब समझ में आ गया राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट। सुनो बच्चा, अगर नहीं होता है ना तो उसी समय पूछा करो और थोड़ा शांत होकर पूछा करो, मतलब हड़बड़ मत करो। एक एक करके आपके सारे डाउट्स का आंसर दिया जाएगा। जस्ट आस्क इट विद पेशेंस, नथिंग मच, राइट? डोंट वरी, ठीक है? ओके चलो गुड। लेट अस टेक नेक्स्ट पर्सन, राहुल। हाँ राहुल बच्चा बोल। सर आपने बोला था कि डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है कुछ अनसर्टेन करके बोला था आपने। वो एक कॉन्सेप्ट है, एक क्लास वो एक बस कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखो, लाइक फॉर द सेक ऑफ इट उसको याद रखो। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना 4.0 सपोज 4 5, ये आपकी रीडिंग है। तो ये वाला जो 5 है इसको अनसर्टेन कहते हैं। अनसर्टेन इसीलिए कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि रीडिंग के समय कोई गलती हुई हो सकता है ये 0.44 रहा हो सकता है पॉइंट आखिरी वाला डिजिट 6 रहा हो, लेकिन देखने वाले ने उसको 5 देखा हो, राइट? सो इस वजह से उस डिजिट को हम अनसर्टेन कहते हैं, बस, नथिंग मच। सर तो अगर सिग्निफिकेंट इसको हम हम लोग इसको सिग्निफिकेंट से लाइक का कुछ है क्या रोल अनसर्टेन नंबर का? सिग्निफिकेंट रूल से इसको जोड़कर अपनी अंडरस्टैंडिंग को अनक्लियर मत करो, बस इसको एज अ फैक्ट याद रखो, बस, एज सिंपल एज दैट, राइट? हेलो हाँ राहुल, इसको एज सर, अ वॉइस फैक्ट इज याद नॉट रखो। ऑडिबल। वो एक्चुअली मेरी वॉइस ना राहुल सबको पहुंच रही है। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू एट योर एंड। तो ये आप सर मुझसे वॉइस इज नॉट ऑडिबल। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, ये आपके एंड पर जो सर वॉइस इज नॉट error है ऑडिबल कुछ। उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो क्लास जिनको मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है प्लीज आप लोग हैंड रेज करेंगे बच्चा लोग। यस, सो ओके, सो ये error सभी को क्लियरली आ रहा है राहुल बच्चा, आई थिंक। ठीक है क्लास, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, सो कार्तिकेय जो आपने अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डाइन, है ना? सो एक मिनट, आई जस्ट लेट राहुल नो अबाउट द, जस्ट अ मिनट बच्चा लोग। सो ऐसे केस में ना आप लोग चेक कर सकते हैं कि आर देयर एनी गुड नेटवर्क्स अवेलेबल इन योर एरिया, और फिर आप अपना नेटवर्क उस अकॉर्डिंगली बदल सकते हैं, राइट? अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है? एनीथिंग, एनीवेज, नो वरीज। सो चैतन्य, सो कार्तिकेय has asked कि डाइन क्या होता है? सो डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। आप लोग पढ़ोगे इसको, जब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे ना आप इसको पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट इट। डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चा? कार्तिकेय क्लियर? anyone else with any query बच्चा लोग? I think one of you, Mahevish, has sent me a question. Just let me have a look at it. Okay, so let's do class this thing. I wanted to do a quick completion है ना of the 6th and 7th rule. तो अब ना 6th और 7th rule का application और उस rule को समझते हैं, right? So yesterday, कल तक हमने 5th rule तक देखा था, तो महेविश आपका डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी क्लास एवरीवन,
you may look here on the screen, right? The next rule actually आपको ये बताता है कि आपको किस तरह से बात करनी है about the significant figures in terms of power to the 10 power raised to the power 10, ठीक है? in terms of something into raised to the power 10 इस फॉर्म में, a into 10 to the power b के फॉर्म में. कहने का मतलब आई रीड दिस आउट जो मैंने आपको सेंड किया है. आप लोग चाहो तो उसे ओपन करो अपने पास, द पीडीएफ व्हिच आई सेंट ऑल ऑफ यू yesterday. The sixth point of the rules for counting significant figures. It says a choice of change of different units does not change the number of significant figures in the measurement. Suppose the length is measured to be, suppose एक length का measurement आया है 2.400 meters, ठीक है? अब इसमें हम समझ रहे हैं हमारे पास 4 significant figures हैं. Then अगली ये point लिखते हैं, if we write it in mm, अभी मीटर में था, अगर हम mm में लिखें तो वो क्या हो जाएगा? mm में लिखने के लिए क्या करोगे? इसको into 10 to the power 3 करोगे, राइट? तो आंसर क्या आएगा? 2400 mm, राइट? अब भी देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन, है ना, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन किसी में सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए. लेकिन यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि अगर कोई हम ऐसा नंबर लिखते हैं तो इसके आखिरी वाले जीरोस को हम इग्नोर करते हैं. तो यहाँ तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, राइट? हो गए, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हो. मैंने क्या कहा? हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, राइट? तो अब इसके लिए इसने एक सोल्यूशन बताया है, राइट? सो इट सेज दैट दिस कन्वर्जन, दिस न्यू वैल्यू. अच्छा क्लास, सब लोग ना यहाँ ध्यान देंगे. अभी मुझे मैसेज करना बंद करो, 2 मिनट एवरीवन. मुझे एक बार जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज पर टिको, राइट? उस चीज पर टिको, जस्ट कम देयर, राइट? तो अभी के लिए मैंने अगर फॉर्म बात किया है a इंटू बी पावर 10 पावर b, मतलब कुछ इस तरह से 8 इंटू 10 पावर 6, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज, सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? तो अभी हम कुछ बात कर रहे हैं, पहले ध्यान से सुनो, राइट? उसके बाद डाउट, पहले सुनो फिर डाउट. तो क्या लिखता है कि आपके पास सपोज ये नंबर है इन मीटर्स, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. मैं आपको एक और रीजन बताता हूँ बच्चों लोग, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. ध्यान से सुनो अब सब लोग, ठीक है? कि अगर आपकी फैकल्टी आपसे कुछ बात शेयर कर रहे हैं, है ना, उसके बीच में आपने डाउट पूछना शुरू कर दिया, रादर देन मैंने आपको क्या बताया है, अपने पास एक पैड रखना है, उस पैड में लिख लेना है. मुझे बीच में डाउट सेंड नहीं करना, पहले लिख लेना उस पैड पे, अपने अंदर डाउट को सेटल होने लेना. फिर जब आपको फैकल्टी डाउट पूछने के लिए बोले, फिर डाउट पूछना, चाहे चैट हो या वॉइस, दोनों से डाउट कब पूछना है? जब उसको इनवाइट किया जाए. अगर फैकल्टी के बीच में बात करते हुए आपने डाउट पूछ लिया तो उससे क्या होगा? उससे फैकल्टी जो पॉइंट आप तक नया पॉइंट रखना चाह रहा था, ना वो रख पाएगा, ना क्लास का टाइम प्रॉपर्ली यूज हो पाएगा, ना आपका वो जो डाउट था वो क्लियर हो पाएगा, बल्कि आपका डाउट और बढ़ जाएगा, राइट? इसीलिए शांति के साथ अपने पास लिख लो, और जब पूछा जाए, जब इनवाइट किया जाए, तब डाउट पूछो, ठीक है बच्चा? रिलैक्स, ठीक है? और हो सकता है मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि जब तक हमारी क्लास पूरी हो अपने आप ही आपके डाउट सुलझ जाएं, है ना? तो शांति के साथ सुनो, जो डाउट आए लिखो, अपने आप ही लेक्चर के एंड होने पर आपके अधिकतर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो सब्र यानी कि पेशेंस डेवलप करो, ठीक है? ओके, अब देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो. अगर हमारे पास एक नंबर है 2.400 मीटर्स, इसको हमने कन्वर्ट किया है किसमें? mm में. तो ये कितना हो गया? 2400 mm. यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 थे, लेकिन अब 2 हो गए. ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट? क्योंकि थर्ड रूल हमें ये कहता है कि जब भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तब हम आखिरी वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, राइट? इस वजह से इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए. तो देखो कंफ्यूजन आ गया कि नहीं? तो इस कंफ्यूजन को एंड करने के लिए एक नया रूल बनाया गया. यूनिट कन्वर्जन की वजह से ये क्या किया हमने? यूनिट को कन्वर्ट किया, राइट? तो यूनिट के कन्वर्जन की वजह से जो डाउट बना रहा था,
इसको खत्म करने के लिए देखो क्या लिखता है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन एवरी नंबर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। एक चीज होती है उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। माय स्पेशल सजेशन टू एवरीवन इज, जब बताया जा रहा है तो ध्यान से सुनो, है ना, चैतन्या, कार्तिकेया, राहुल, ध्यान से सुनो। जब एक बार मौका दिया जाए उसके बाद कहना है या उसके बाद डाउट पूछना है, ठीक है, अदरवाइज यू स्किप आउट ऑन दिस। ऑल राइट, सो आई थिंक आई टेक दैट क्वेश्चन क्लास। देखो बच्चा लोग, अभी हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन की, साइंटिफिक नोटेशन की, और हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन को लिखा जाता है किसी भी नंबर को इस फॉर्म में, a इंटू 10 पावर b। a इंटू 10 पावर b क्या है? ये वाला जो नंबर है a, है ना, दिस नंबर a इज समवेयर बिटवीन 1 से लेकर 10, राइट, whereas this number b is any number which can be either positive or negative. Have a look आप लोगों का पॉइंट नंबर, sorry, yeah, point number 6 talks about it. Check it everyone in the notes I've sent you, right? इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे सपोज आपके पास एक नंबर है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ 2400, तो इसको आपको क्या कन्वर्ट करना है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसा बनाओ। लेकिन जो बाद के जो 2 जीरो हैं उसको बने रहने दो, उसको हटाओ मत, ठीक है, राइट। अब अगर सपोज हम बात कर रहे हैं 2.400 मीटर्स की, राइट, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो हम क्या जानते हैं, 2.400 इंटू 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 लिखा इस सेंटीमीटर्स में, फिर कैसा लिखा, 2.400 जस्ट का तस रहेगा, ठीक है, उसको हटाना नहीं है, सेंटीमीटर, उसको हम लिखेंगे 2.400 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर सपोज अब मुझे mm में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या जानता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इज 10 mm। बच्चा लोग डाउट अभी मत पूछो, रुक जाओ 1 मिनट रुको बच्चा, ठीक है, हाँ, पहले सुनो उसके बाद पूछो, है ना। सपोज अगर आपके पास आया है नंबर 2.400, क्या हो जाएगा बोलो, 2.400 इंटू 10 टू द पावर 3 mm, राइट। तो इस तरह से हमें समझ में आ रहा है क्या, कि अगर हमने यूनिट को चेंज किया मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो ऐसा करने पर तो ऐसा करने पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो अनचेंज रहे। कब? जब आपने 10 के पावर में एक्सप्रेशन लाया है, जब आपने ये 10 का पावर रहने दिया है, कुछ इस तरह से ये जो पहले नंबर है a, ये 1 से लेकर 10 के बीच में है, और ये जो पावर है इसके पावर में जो भी आया इट इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी आप इस फॉर्म में ले आते हो, यानी कि a इंटू 10 टू द पावर b, तो चाहे आप कोई भी यूनिट में ले जाओ अपने नंबर को, अपने यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, significant figures will remain same, number of significant figures will remain same, right? क्लियर है बच्चा लोग आपको ये बात, राइट?
ओके, अब 7th वाला रूल, ये वही रूल है जो आपको मैंने सबसे फर्स्ट रूल के फॉर्म में पढ़ाया था, याद करो। देखो रूल क्या लिखता है, एन एग्जैक्ट नंबर, जिसको मैंने प्योर कहा था, इन्होंने कहा है एन एग्जैक्ट नंबर। एक एग्जैक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है which is not measured, which is not measured। अब चाहो तो प्योर को कैंसिल कर सकते हो। when I was saying pure I was meaning this, ऐसा नंबर। याद रखो हमने एक यहाँ पर मेजरमेंट में लिखा था, राइट, या ब्रैकेट में लिखा था नंबर which is not measured, in terms of the measurement हमने लिखा था एक ऐसा नंबर जिसको measured नहीं किया गया हो, उसको हम एग्जैक्ट नंबर कहते हैं। जैसे let's say 5, right, let's say 3, let's say 100, मैंने ऐसे ही कोई भी एक नंबर दे दिया, जैसे 100.08, कुछ भी एक नंबर दे दिया, लेकिन कोई यूनिट्स नहीं दिया। जब यूनिट्स नहीं दिया तो उस जो भी आपको नंबर दिया गया है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट, अगर यूनिट ना दिया जाए तो, है ना। तो आपको एग्जाम में कई बार हो सकता है ऐसे नंबर्स दे दिए जाएं, जैसे पाई दे दे, 2 दे दे, 5 दे दे, और बोले इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। तो बोलना, आपको बोलना पड़ेगा एग्जाम में कि अगर सपोज इसके साथ यूनिट्स होते, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा दिया गया है, और पहला क्वेश्चन आ जाता है, ये स्कूल के एग्जाम की बात हो रही है, अदरवाइज तो आपको जेईई में ऐसे क्वेश्चन सपोज नहीं आते हैं जहाँ पे आप थ्योरी तो होती ही नहीं, राइट। सपोज आपको ऐसा नंबर दे दिया गया 100, है ना, तो आपको लिखना है एग्जाम में, सपोज अगर इफ यूनिट्स वर देयर, इफ यूनिट्स अगर होते, इफ यूनिट वाज प्रेजेंट, देन हम इसको, सपोज ये 100 सेंटीमीटर होता, तब इसके आखिरी वाले 2 जीरोस का कोई महत्व नहीं, तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होता, दैट इज 1, राइट। और अगर सपोज ये एक एग्जैक्ट नंबर है, राइट, सपोज अगर ये एग्जैक्ट नंबर है जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, यानी कि कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, इफ इट इज नॉट अ मेजर्ड वैल्यू, ऐसे केस में यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनफाइनाइट, आपको ऐसा बताना पड़ेगा, राइट। तो स्कूल के एग्जाम में स्पेसिफाई कर देना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाए यूनिट तो लिखना कि अगर यूनिट नहीं है तो इनफाइनाइट होता है, यूनिट होता तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता, ठीक है, अगर स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। क्लियर है? अब बोलो बच्चा लोग, यहाँ वंस अगेन गिविंग यू अ चांस, जो क्वेरी हो पूछ लो। यस बच्चा लोग, अब पूछो, यहाँ पूछो, अब अपनी कॉपी में जहां जहां आपने मार्क किया है सर से जो जो पूछना है पूछते जाओ। यस बच्चा, हाँ कार्तिक पूछो। सर जो ये 7th रूल है, मतलब कोई भी एग्जैक्ट नंबर हो तो फिर वो इनफाइनाइट ही होगा ना उसका? any number with no measurement which is not measured, कोई भी ऐसा नंबर जो मेजरमेंट से नहीं आया, बस ऐसे ही कोट कर दिया गया। क्लियर है? और सर ये 6th रूल में और एग्जांपल देंगे क्या? ये क्लियर है क्या? कैसे क्वेश्चन? ये क्लियर है? हाँ सर 7th क्लियर। यस सर क्लियर। 6th वाला आपको तब क्लियर होगा जब आप एक्सरसाइजेस बनाओगे, है ना। तो जैसे आप लोगों के लिए स्टार्ट करो, आप सभी लोग स्टार्ट करो बनाना फ्रॉम योर डीसी पांडे, शुरुआत करो सभी लोग of your level 1 and level 2, because we are yet to do one more topic, that is error analysis, and जैसा मैंने आपको बताया है screw gauge and vernier calipers की रीडिंग, जैसे ही वो होता है तो आपको और भी मजा आएगा, बिकॉज तब आपसे और भी क्वेश्चंस बनेंगे। क्लास वन मोर थिंग है ना, आई विल गिव यू वन पॉइंट ऑफ कॉशन। पॉइंट ऑफ कॉशन इज कि जब आप लोग अपने डीसी पांडे के लेवल 1 लेवल 2 को सॉल्व करेंगे ना, इट विल हैपन कि आपके पास कई सारे ऐसे टर्म आएंगे इस चैप्टर में जो आपने पहले नहीं सुने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल परमिटिविटी के बारे का यूनिट बताओ, राइट, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में यूनिट बताओ। तो यू माइट एंड अप थिंकिंग कि ये क्या क्या आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, बिकॉज ये सब वो चीजें हैं जो इस चैप्टर के बाद आएंगे। आई रिपीट फॉर एवरीबॉडी हु इज न्यू इन द क्लास, ये चैप्टर एक मूवी की तरह है ना, और मूवी की शुरुआत है रादर। तो उस मूवी की शुरुआत में जैसे एक सस्पेंस मूवी में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, या बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता कोई घटना क्यों हुई है, वी गेट टू रियलाइज अबाउट इट एट द एंड ऑफ द मूवी। सेम थिंग विल हैपन हियर। जो वो क्वेश्चन है जहां पर ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जो आपने पहले नहीं सुने, जैसे सरफेस टेंशन, जैसे मे बी लेट्स से टॉर्क,
है ना, या फिर मोमेंट ऑफ अ फोर्स, तो ऐसा कुछ मिल जाए तो घबराना मत, उस क्वेश्चन को अभी के लिए लीव इट आउट, वो अभी आपके लिए नहीं है। वो क्वेश्चन आपके लिए कब है, जब आप उन टर्म्स को पढ़ चुके हो। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को छोड़ देना अभी के लिए, जो टर्म से आप परिचित नहीं है। जितना जानते हो, जिससे परिचित हो वो करो। क्लास 12th में या 11th के आखिर तक आप इन सारे टर्म से परिचित हो जाएंगे। तो तब यानी कि एक बार क्लास 11th के एंड में और एक बार क्लास 12th के एंड में आपको इस चैप्टर पर दोबारा आना है। क्लियर? तो जैसे आप वापस आओगे तो वो क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो जो नहीं आ रहे हैं, जो टर्म के बारे में अभी नहीं सिखाया गया है, उसको लेकर चिंतित नहीं होना है, उसको लेकर रिलैक्स रहना है, सब बनेगा धीरे धीरे। यस, एनीवन, एनी अदर क्वेरीज पूछो। यस बच्चों, ओके, एनीवन, एनी क्वेरीज, लेट मी नो। Okay, so I believe everyone are done with their queries, right? So telling you all with the covering the last one of the important topics of this chapter, which is error analysis. Heading दो सभी लोग, error analysis. Heading दो सब लोग, error analysis. चैतन्य बच्चा, एक मिनट, डाउट अभी नहीं बच्चा, एक बार इसको फिनिश करने दो फिर पूछो बच्चा, ठीक है? ओके, लिखो सभी लोग। और बच्चा जो भी बात है आपको कहनी है उसको लिख के चैट पे भेजना, बट अभी अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है? अपनी कॉपी में लिख लो। जैसे अभी हैंड रेज मत करो, अभी कॉपी पे लिख लो, फिर बाद में जब हैंड रेज करके डाउट पूछा जाए तब पूछो, राइट? अभी उसको कॉपी में लिख लो बच्चा, राइट? तो आई गिव यू द चांस, डोंट वरी, मैं एक कुछ इंटरवल्स में जैसा मैं आपको चांस दे रहा हूँ, आई गिव यू द चांस, उस समय पूछो, ठीक है? ओके, सो एरर एनालिसिस, ठीक है? सो एरर एनालिसिस में सबसे पहला पार्ट है एरर। क्या होता है एरर, है ना? एरर का मतलब है, अगर आपने कोई रीडिंग ली, है ना, अगर आपने कोई रीडिंग ली और एक्चुअल वैल्यू और रीडिंग में कोई फर्क आया, एक्चुअल वैल्यू और रीडिंग में कोई डिफरेंस आया, जिसको अपन बोलते हैं रीडिंग या मेजर्ड वैल्यू, उसको अपन कहते हैं एरर, है ना? उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे सपोज आप एक्चुअल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो ए से। किससे? एक्चुअल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लेट्स से ए, ठीक है? और जो आपके पास एरर आया है, राइट, जो एरर आया है, इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो सपोज विद द वैल्यू डेल्टा ए। किससे? डेल्टा ए से, राइट? सो इसको और भी क्लियर तरीके से देखना चाहो, सो लेट अस एक क्लियरली हेडिंग दो एवरीवन, सब हेडिंग दो, all of you give us subheading absolute error. Absolute error, है ना? absolute error क्या होता है? absolute error का मतलब होता है, सपोज आपने अलग अलग तरह की रीडिंग्स ली किसी एक वैल्यू की, लेट्स से उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी am, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी am, ठीक है? और आपने अलग अलग रीडिंग्स ली, लेट्स से a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, ठीक है? लेट्स से an तक n रीडिंग्स ली आपने, है ना? कुछ कुछ वैल्यू आई, सो इनको अपन एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। सो लेट्स से यू आर राइटिंग योर वैल्यूज ओवर हियर, वील राइट इट ओवर हियर। देखना सभी लोग, ठीक है? हमारे पास ऐसे कुछ वैल्यूज आ रही हैं, वी आर राइटिंग देम ओवर हियर। और इसको यहाँ बनाते हैं, देखो एक ऐसा टेबल बनाओ, सब लोग मेक अ टेबल। इसी एक टेबल से देखना आपके सारे, एक ही टेबल में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। देखो फर्स्ट हेडिंग दो रीडिंग, यानी कि क्या मेजरमेंट आया है, राइट? एक्चुअल वैल्यू सबसे ऊपर लिखते हैं,
तो यहाँ लो रीडिंग, यहाँ लिखो रीडिंग, क्या रीडिंग आई, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू, राइट, इसको अपन AM से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, सबस्क्रिप्ट में है M, ठीक है। यहाँ रीडिंग्स आएगी, सपोज रीडिंग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A1 से, A2 से एंड सो ऑन AN से, राइट, दीज आर डिफरेंट रीडिंग्स। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है द मॉड ऑफ, मॉड का मतलब होता है विदाउट पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, ओनली पॉजिटिव, जस्ट पॉजिटिव, राइट, मॉड ऑफ difference between, mod of difference between the actual value and the measured value. So आप इसको लिख सकते हो A of I, मतलब कोई भी एक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और सॉरी द मेजर्ड वैल्यू, कोई भी एक मेजर्ड वैल्यू माइनस द एक्चुअल वैल्यू AM, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर I का मतलब है ये सारी वैल्यूज, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n, कुछ भी वैल्यू ले सकता है I इज इन सबस्क्रिप्ट, ठीक है। कहने का मतलब लेट्स से अगर आपके पास कोई एक आप किसी एक चॉकलेट की लेंथ मेजर कर रहे हो, राइट, सो सपोज उसकी लेंथ, एक्चुअल लेंथ है 10 सेंटीमीटर्स, लेकिन आपने मेजर की पहली बार में 9.8, फिर आपने मेजर की 10, फिर आपने मेजर की 9.9, सो राइट, सपोज आपके ये मेजरमेंट्स आए हैं, राइट, तो ये आपकी रीडिंग्स हो गई, ये क्या हो गई, आपकी रीडिंग्स हो गई, 3 रीडिंग्स हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो आप यहाँ हेडिंग दोगे एब्सोल्यूट एरर, और डिफरेंस लोगे किसके बीच में, आप डिफरेंस लोगे एक्चुअल वैल्यू और गिवन वैल्यू के बीच में, राइट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब इसका मॉड ले लेंगे, राइट, क्या ले लेंगे, मॉड। मॉड मतलब मॉड क्या करता है, चीजों को हमेशा पॉजिटिव रखता है, ठीक है। तो अब 10 और 9.8 के बीच का फर्क कितना है, पॉजिटिव फर्क बोलो, 0.2, तो यहाँ 0.2 आएगा, राइट। उसी तरह से 10 और 10 के बीच का फर्क कितना है, 0। उसी तरह से 9.1 और 10 के बीच का फर्क कितना है, ओनली डिफरेंस मैटर्स, बड़ा या छोटा नहीं, सिर्फ डिफरेंस मैटर्स, राइट। सो डिफरेंस कितना है, 0.1 का, सो यू विल राइट 0.1। नाउ एक बार जब आपने एब्सोल्यूट एरर लिख लिया, एक बार जब आपने एब्सोल्यूट एरर लिख लिया, तब आप क्या करोगे, तब आप एक नए तरह के एरर के बारे में पढ़ोगे, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। लिखो सब लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। मीन एब्सोल्यूट एरर इज वेरी सिंपल। मीन शब्द का मतलब क्या होता है, एवरेज। क्या होता है बच्चों लोग, एवरेज। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सबको आप ऐड करते जाओगे और उनका एवरेज ले लोगे। So on and so forth, right? So let's say you want to take it for the nth value. तो ऐसी n वैल्यूज को ऐड करो एंड देन डिवाइडेड बाय देयर नंबर। जैसे हमारे केस में, राइट, it will become even easier. Let's say I'll make this value even one lesser. जैसे let's say हमारे पास ये 9.7 है, तो ये कैसा हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.2 एंड सो ऑन। और सपोज अगर अभी के लिए हमारे पास कैसा था, 0.8 था, राइट, तो ये क्या हो गया था, अगर ये 9.8 था तो डिफरेंस कितना आ गया था, 0.2 का, राइट, 0.2 का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा, इन सबको ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय n, राइट। सो वी हैव मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा am से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा am से, राइट। मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का भी मीन, तो यू विल हैव डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2
plus delta A3 divided by n. So क्या हो जाएगा 0.2 plus 0.0 plus 0.1 divided by 3, which should give you 0.3 by 3 is equal to 0.1. ठीक है? So your mean absolute error of all of these readings should is equal to 0.1. ठीक है? ये पहला पॉइंट हो गया, राइट? उसी तरह से जो अगला पॉइंट है, सिर्फ एक डेफिनेशन लिखो, राइट? डेफिनेशन लिखो. क्या डेफिनेशन है? रिलेटिव एरर. डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज जो भी आपका मीन एरर आया ना, अभी मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एम, यहां पर इसको आप इस एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दो. और कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है तो जो भी वैल्यूज दी है ना रीडिंग्स में, उनका आप मीन ले लोगे. क्या ले लोगे? मीन ले लोगे. जैसे क्वेश्चन में सपोज एक्चुअल वैल्यू अभी मैंने आपको 10 दे दिया था, लेकिन सपोज अगर 10 न दिया जाए, तब आप क्या ले लोगे? इनका मीन लेकर एम निकाल लोगे. आई विल रिपीट, अगर एक्चुअल वैल्यू न दी हो, इफ एक्चुअल वैल्यू नॉट गिवन, लिख लो इसको एज अ नोट सब लोग लिखो. इफ एक्चुअल वैल्यू नॉट गिवन, am is equal to a mean, मतलब सारी रीडिंग्स का मीन ले लो, तो उससे जो वैल्यू आएगी उसको आप am बोलोगे. ठीक है? नाउ आपने इसी am को डिनोमिनेटर में रखा, मीन एब्सोल्यूट एरर को न्यूमरेटर में रखा, तो जो एरर आया उसको क्या कहा? रिलेटिव एरर. क्या कहा बच्चा लोग? रिलेटिव एरर. उसी तरह से एक अगला एरर आता है, उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर. क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर. इट इज नथिंग बट जो हमने रिलेटिव एरर लिया, उस रिलेटिव एरर को आप मल्टीप्लाई करते हो किससे? 100 से. किससे मल्टीप्लाई करते हो? 100 से. तो जैसे हमारे केस में आप 0.1 आया, राइट, मीन एरर, तो अब रिलेटिव एरर कितना आएगा? रिलेटिव एरर कितना आएगा? 0.1 अपॉन कितना था एक्चुअल वैल्यू? 10. तो 0.1 अपॉन 10 विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव एरर. अब अगर मैं बात करूं परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? इससे परसेंटेज एरर हो जाएगा रिलेटिव एरर जो भी आया इनटू 100, है ना, इनटू 100. तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1%. तो ये जो रीडिंग्स दी हुई है, इसमें जो एरर है, परसेंटेज एरर है, मैं कहूंगा इट इज 1%, राइट? ठीक है बच्चों लोग, फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास, राइट? ये एरर एनालिसिस था, इसमें इतने ही टर्म्स हैं. हम लोग कल जो पढ़ेंगे दैट टॉपिक विल बी अलग अलग. अगर एरर्स आ जाएं, राइट, अगर एक फॉर्मूला दिया हो इस तरह से, देखो, अगर एक फॉर्मूला दिया हो कुछ इस तरह से, लेट्स से z इज इक्वल टू a का पावर a इंटू b का पावर b अपॉन c का पावर c, है ना? तो अगर z का रिलेटिव एरर इज डेल्टा z बाय z, a का रिलेटिव एरर इज डेल्टा a बाय a, b का रिलेटिव एरर इज डेल्टा b बाय b, c का रिलेटिव एरर इज डेल्टा c बाय c. अगर ये सब क्या है? रिलेटिव एरर. अगर ये सब क्या है? रिलेटिव एरर. तो हम क्या करेंगे? इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. ये क्या दे रहा है? ये कनेक्शन दे रहा है बिटवीन रिलेटिव एरर ऑफ z एंड रिलेटिव एरर ऑफ द वैल्यूज ऑन विच z डिपेंड्स. कहने का मतलब, अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि a, b और c में कुछ एरर्स हैं, जैसे सपोज कहा जाए a में, जैसे ये रिलेटिव एरर के बीच में रिलेशन है ना, अगर वैसा ही रिलेशन आपको परसेंटेज एरर के बीच में लिखना हो, तो क्या हो जाएगा? ये किसके बीच में है? दिस वन इज द रिलेशन. लिखो यहां पर सभी लोग, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एरर्स, बिटवीन रिलेटिव एरर्स. और अगर मुझे ऐसा ही रिलेशन किसके बीच में चाहिए?
between percentage errors. तुम percentage error क्या होता है यहाँ देखो, percentage error होता है, have a look everyone, it is nothing but relative error into 100. तो अब हर जगह 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डेल्टा z by z into 100 is equal to a times delta a by a into 100, right, plus b times delta b by b into 100 plus c delta c by c into 100, right. यहां से क्लास हम कल की क्लास में देखेंगे, where ये वैल्यूज क्या है, these values are percentage errors. This is percentage error in A, this is percentage error in B and so on. जबकि जब मैंने ये लिखा था तो इसका मतलब क्या था, रिलेटिव एरर इन बी, इसका मतलब क्या था, रिलेटिव एरर इन सी, इसका मतलब क्या था, रिलेटिव एरर इन ए. रिलेटिव मतलब जितना एरर आया, जितना मीन एरर आया, उस एरर को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दो, सिंपल. तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर. यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे. आज एक एक्सपोजर जरूरी था आप लोगों को, कुछ फंडास से जुड़ा हुआ, वो एक्सपोजर मैंने दिया है. कल हम इसको और डिटेल में और बारीकी से समझेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है. यहां से चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी इन द टाइम्स टू कम, राइट. सो लेट्स मीट टुमारो. कल यहां से हम कोई डाउट नहीं लेंगे, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ है. एक बार कॉन्सेप्ट पूरा होगा फिर डाउट लेंगे, ठीक है. अभी कोई डाउट नहीं लेंगे, जब कॉन्सेप्ट पूरा होगा फिर डाउट लेंगे, ठीक है. तो कल की क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और एक बार ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा फिर डाउट लेंगे, ठीक है. ऑल राइट बच्चा लोग, क्योंकि यहां तक आप लोगों ने कहा है क्लियर है, तो जो भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे हैं ऑन द ग्रुप, वो बनाना शुरू करो. एनसीईआरटी में आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स सब बनाओ. जहां डाउट होंगे हम उनको नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में लेंगे, राइट. ओके क्लास, थैंक यू very much. Thanks a lot, right? Thanks a lot for being a part of the session today. Let us meet in the next class, that is tomorrow at 1 p.m. and go ahead. ठीक है? Okay, बच्चा लोग. Thank you very much. You all can log off. Thank you. कल मिलते हैं at 1 o'clock. Yes. Thank you, class. Tejas, you want to say something? बोलो बच्चा, आप मैसेज कर दो. Okay, बच्चा लोग. Thank you very much. Thank you. हाँ बच्चा तेजस, पूछो, कुछ कह रही हो बच्चा? yes. The last दिखा दो एक बार. Yes बच्चा बोलो. Last slide दिखा दो. ये बोल रहे हो? ये पेज कह रहे हो क्या बच्चा? Yes, ये लिखना है. हाँ लिखना तो है ही, इन केस नहीं लिखा तो लिख लो बच्चा, लिख लो. बच्चा क्लियर हो रहा है, जो भी क्लास में बताया जा रहा है वो क्लियर हो रहा है अच्छे से? Yes, sir. है ना. और ऐसा मत करना तेजस दैट यू आर न्यू टू द क्लास, तो ऐसा मत सोचना दैट you cannot ask. You can definitely ask, everyone can ask, but just that कि उस टाइम पर पूछो when you're being told to, just that, है ना, और कुछ नहीं. Yes, sir. I think there are more students waiting. Okay, are they? Chaitanya कुछ पूछना है कि बच्चा पूछ लो. Anything that remains, Chaitanya, just let me know. सर इट वाज वो सर वो गलती से हैंड रेज हो गया था, बस और कुछ नहीं. नहीं कोई बात नहीं, बस वो मैं एक मेरा मैसेज मैं क्लियर करना चाहता था, सिर्फ आपके लिए नहीं, काफी सभी बच्चों के लिए, कि एक बार में डाउट पूछो व्हेन गिवन अ चांस, नथिंग मोर नथिंग लेस. या ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चा? आप चैतन्य, जो आज हमने पढ़ा क्लियर हो रहा है? जो भी आपने डाउट्स पूछे उसका क्लैरिफिकेशन मिला आपको, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पेज. हाँ हाँ चैतन्य बच्चा, क्लियर हुआ? यस सर, ऑल क्लियर सर, है ना. yes, ये जो अभी हम सर, कर रहे हैं ना, इस कॉन्सेप्ट से अभी मत पूछना डाउट, जब इसको फिनिश करेंगे तब पूछना, ठीक है?
सर वो रिलेशन वाले का आप वीडियो कब शेयर करोगे? वेरी सून बच्चा, वेरी सून, डोंट वरी अबाउट इट। पहले आप लोग वो फॉर्म भर लीजिए, बिकॉज वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए आई रिक्वायर सम डिटेल्स, जो डिटेल्स आपको उस फॉर्म में भरने हैं। हैव यू ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म बच्चा? सर अभी नहीं सर, अभी मैं भरूंगा उसको कर दीजिए, मम्मी फिल के कर साथ दीजिए, में। राइट, फोल्ड कर दीजिए, फिल कर दीजिए। ओके सर। ओके, थैंक यू।